Hello everyone, how are you? Fine, ma'am. Good. Hariom, how are you? Fine, ma'am. I'm doing good. Good. How was your weekend? It's so good. So good. Okay, good. Simran's So weekend good. was not good. And I just Ma'am, wanted to because know, Hariom and Simran, you have sent me your homework of the pronunciation. So have you now understood about how we going to pronounce those words? Okay no, then. ma'am. Then we'll continue the topic. So as you are aware that we have completed our first month, and in our second month we are going to understand about these things. Who is going to read the agenda? Ma'am, can I? Yeah, sure, Ilma. Agenda prepositions in, on, under, etc. Short paragraph writing describing people and places. Daily routine vocabulary. Mhm. First level of tenses. Present simple, past simple. Using there, is, are, this, that. Question formation and answering role plays. Correct. So these things we are going to cover in our second month. So firstly, we'll understand about what is preposition. Is anyone aware about this? कि what are prepositions? हाँ अवेयर तो है प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन हमें जैसे हमें कुछ बताता है कि कोई चीज कहाँ पे है, स्थान और ये सब कुछ बताता है ना। Okay. So please, Ravi, read the definition of preposition. A preposition is a word that show the relationship between a noun or pronoun and other word in the sentence. It often tells us about place, time or direction. Okay. The first mistake which you have done is other बोला आपने. It's another, not other. Other की spelling होती है अलग, another की होती है अलग, right? वो है ना? So read it क्या very मतलब carefully. हाँ, read it very carefully. Now have you understood what is preposition? Preposition एक ऐसे words होते हैं जो हमें किसी भी चीज का रिलेशनशिप बताते हैं, किसी दो चीज का, नाउन और प्रोनाउन के बीच में या किसी दूसरे वर्ड के बीच में. हो सकता है वो प्लेस से रिलेटेड हो सकता है वो टाइम से रिलेटेड हो, डायरेक्शन से रिलेटेड हो, इन चीजों के बीच में ऐसे वर्ड्स जो इनके बीच का रिलेशन बताएं हमें, तो उसको हम कहते हैं preposition. Have you understood? Okay. So these are some prepositions, ठीक है, which we use. Who will read this? Word in something is inside a space or object. Example: the key, the keys are the keys are in my bag. In से पहले आपको क्या समझ आया? What have you understood about in? अंदर की साइड किसी Yes, स्पेस में. yes, अंदर की तरफ. Something is inside a space or object. अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है, किसी स्पेस के अंदर है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, then we'll say it is in the table, on the, ऐसे करके. Okay. And next, Ravi, on का पढ़ो. on something is on top of the face. The phone is on the table. फोन टेबल के ऊपर है। हाँ, तो on से हमें क्या तात्पर्य होता है? On का क्या मीनिंग है? ऑन जैसे ना हमें कुछ ये बताता है कि कोई चीज ना सरफेस से ना टच में है, जब हम ऑन का यूज करते हैं ना। हाँ, उसके टॉप पे है, सरफेस कोई भी चीज है, चाहे बेड है, टेबल है, कोई चीज है, उसके टॉप पे है, उसके ऊपर है. इनका मतलब हो गया जैसे ये उस मेरा सरफ. जैसे ये मेरा पाम है तो उसके ऊपर ना पेन है, तो ये यस, सरफेस ये यस, सरफेस है तो यस, करेक्ट. इनमें क्या था, किसी स्पेस के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है कोई चीज, इसके अंदर है. ठीक है, मान लो एक बॉक्स है, एक काइंड ऑफ बॉक्स है जो होलो है, जो खाली है. मैंने बोला आई हैव पुट अ चिल्ड्रन इन दी बॉक्स. मैंने एक बच्चे को उस बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो वो इन है. और वही बॉक्स अगर कवर है, पूरा बंद है वो बॉक्स, तो मैंने उस बच्चे को ऑन द बॉक्स रख दिया, मतलब बॉक्स के ऊपर बिठा दिया. वो हो गया ऑन. अब हरिओम अंडर का पढ़ो आप. Under something is below something else. The cat is under the table. मतलब नीचे, I think नीचे. यस, यस, The समथिंग cat इज is under the अंडर table. समथिंग, मतलब या कोई चीज किसी नीचे. चीज के नीचे है. ठीक है, किसी चीज के नीचे, बिलो. आगे इल्मा, आर यू एबल टू रीड नेक्स्ट टू? Yes, ma'am. Next to something is beside something else. नो, The bag is next to the chair. जैसे कोई चीज किसी चीज के आगे है. नॉट आगे. अगला. सी, Next to. नेक्स्ट टू का मतलब होता है, इज एनीवन अवेयर अबाउट नेक्स्ट टू? बगल में, साइड में, साइड में, यस, बगल। जस्ट उसके साइड में. ठीक है, लाइक अ बॉटल इज जस्ट, आई हैव पुट अ बॉटल बिसाइड्स मी और नेक्स्ट टू मी. मैंने जस्ट अपनी बॉटल को मेरे साइड में रखा है. मेरी फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड जो है वो नेक्स्ट मेरे, क्या कहते हैं, मेरे साइड में खड़ी है. नेक्स्ट, शी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, मतलब वो जस्ट मेरे साइड में है, ना ही पीछे ना ही आगे, जस्ट ऐसे साइड में. ओके. इसके लिए वील यूज नेक्स्ट टू. समथिंग इज बिसाइड समथिंग एल्स, किसी एक चीज के लिए, कोई भी चीज हो सकती है, कोई पर्सन के साइड में है, कोई वॉल के साइड में है. मैंने बोल दिया कि वो कैन यू प्लीज पुट दैट बॉटल नेक्स्ट टू द वॉल. वॉल के जस्ट साइड में रख दोगे क्या, या फिर नेक्स्ट टू द लैपटॉप, लैपटॉप के साइड में रख दोगे क्या? मतलब साइड में, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे ना ऐसे. ठीक है, ना ही अंदर, साइड में. ओके. यस, सिमरन, बिटवीन. Between something is in the middle to the two things. The lamp is between the sofas.
किसी Okay. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब कोई चीज आती है। यस तो अभी मुझे एक चीज बताओगे, व्हाई डोंट वी यूज बिटवीन? अगर मैंने बोला कि एक स्पेस है, हम ऐसा क्यों, इनका यूज क्यों नहीं करते? कोई बता सकता है मुझे? बिटवीन मतलब क्लोज नहीं है ना पूरी तरह, बिटवीन में ना। यस बिकॉज ये दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात है, ये दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में रखी हुई है कोई चीज हमने, इट्स नॉट लाइक कि वो टच हो रही है या कुछ। इनका मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर हो, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर है वो, दो चीजों के बीच में नहीं है। अगर दो चीज आ जाएंगे तो उस पे हम बिटवीन यूज करेंगे, बीच में रखे हुए हैं मैंने। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ रवि, बिहाइंड यस का मैम। रीड बिहाइंड वन। Something is at the back of something. These shoes are behind the door. जूते दरवाजे के पीछे हैं। यस मतलब बिहाइंड का मतलब क्या हुआ? पीछे, बैक, बैक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के पीछे, दरवाजे के पीछे। और मैं बोलूं कि वो समवन इन स्टैंडिंग बिहाइंड मी, कोई मेरे पीछे खड़ा है, ठीक है, पीछे, नॉट नेक्स्ट टू मी, पीछे। बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे, बिटवीन का मतलब हो गया बीच में, नेक्स्ट टू का मतलब होता है साइड में, अंडर का मतलब होता है नीचे, ऑन का मतलब होता है ऊपर, इन का मतलब होता है अंदर। ओके, अब हरिओम, इन फ्रंट ऑफ? Front of something is before facing another thing. या The car is in front of the garage. मतलब गाड़ी गैरेज के सामने खड़ी है। फ्रंट तो का इन मतलब फ्रंट सामने, ऑफ, सामने की यस, तरफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो सकता है कि या तो वो मेरे आगे खड़ी है, या तो वो मुझे फेसिंग कर रही है, मेरी तरफ फेस कर रही है वो, ठीक है। जैसे दो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, मैंने बोला यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, अब उसका ये पॉइंट नहीं रहता, हो सकता है उसकी मेरे को पीठ दिख रही हो सकता है मेरे को उसका फेस दिख रहा हो, तो इट मीन स्टिल ही और शी इज इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, वो मेरे आगे ही है। ओके